Knowledge is good, whatever source it originates. Namaskar to one and all present here. On behalf of Mayur School, Jaipur, I proudly welcome you all to our special assembly. I cordially extend my warm welcome to our esteemed chairperson, Shri Rajkumar Kandoni, and vice chairperson, Mrs. Shivani Kandoni, and our guests for the day. We are truly honored and privileged to have you with us today to grace this event with your presence. I would request our principal, Ma'am Ritu Sharma, to honor our chairperson, and Ma'am Dikshita Papriwal to honor our vice chairperson occasion. In Ayodhya's sacred dream, he was born. Prince Ram, virtues like a golden morn. With bow and arrow, Dharma his guide. In each role, he stood with unwavering stride. Sita, his love, a devotion so true. Together their love faced challenges in full view. Lakshman, his brother, by his side. For Ram's sake, he crossed oceans wide. In Hanuman's loyalty, friendship so strong, he leaped across the sea, righting every wrong. Ram's life, a tale we cherish and embrace, a guide to love, sacrifice and grace. In Ram's name we find our way. Let's follow his wisdom, come what may. Dussehra, also called as Vijayadashmi, is culmination of the 9-day Navratri celebrations. Dussehra celebrates Lord Ram's victory over Ravana in a festival spread over 10 days. This auspicious day reminds people of the fact that truth always wins and motivates them to follow the path of Dharma. To emphasize the significance of celebrating festivals, we have gathered here to witness a magnificent Ramleela performance by the talented students of our school. Ramleela is not just a play, it's a journey into the epic story of Lord Ram's life. Lokaviramam Ranarangadhiram Rajivanetram Raghuvanshanatham Karunyarupam Karunakarantam Sri Ramachandram Sharanam Prapadya. Arthat, let's take refuge in Sri Ram, who is pleasing to the people, who is calm and composed in the battlefield, whose eyes are like blue lotus, and who is the Lord of Raghu dynasty, who is an embodiment of compassion and shower his compassion to all. Let's take refuge in the lotus feet of Sri Ramchandra. Without further delay, I would now request the right person and our host of the day, Ma'am Anita Sehgal, to take over. Hari Ananta Hari Katha Ananta Kahi Sunahi Bahu Bidi Sab Santa Ram Ratan Dhan Jo Koi Paaye Jeevan Bhar Ramayan Gaaye. नमस्कार। जब जब पृथ्वी पर अन्याय का घड़ा भरने लगता है, तब तब ईश्वर धर्म की स्थापना के लिए जन्म लेते हैं और इसी से रचता है एक नया पुराण, जो युगों युगों तक लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। और इसी रचना का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है रामायण। आओ बच्चों, आज हम आपको रामायण की कथा सुनाते हैं। ये कथा है अवध की। अवध के सरयू नदी के किनारे एक रमणीय नगर था अयोध्या। महाराज रघु के वंशज, कुशल योद्धा व न्यायप्रिय शासक दशरथ यहाँ के राजा थे। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। उनके राज में चारों ओर सुख शांति थी। बस उनके जीवन में कमी थी तो केवल संतान की। मुनि वशिष्ठ की सलाह से उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया और चैत्र माह की नवमी को कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया।
घर घर में खुशी और उल्लास की लहर गूंज उठी। राजगुरु नामकरण के लिए पधारे और बोले, कौशल्या नंदन का नाम होगा केवल 2 अक्षर का, किंतु इतना महान कि उसमें अनंत ब्रह्मांड समा जाए। अखिल विश्व को आनंद देने वाले सुखधाम का नाम राम, भगवान विष्णु के अवतार दशरथ पुत्र राम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद चलत रामचंद्र ठुमक चलत राम जत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्
गुरुकुल की शिक्षा यही, सब हो एक समान। प्रथम धर्म तो कर्म है, जीवन कर्म प्रधान, जीवन कर्म प्रधान। हर स्थिति में जी सके, धर्म हो या वनवास, कर्मवीर बनकर रखे अपने पर विश्वास, अपने पर विश्वास। इस प्रकार चारों राजकुमार शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर पुनः अयोध्या लौटे। जनकपुरी पहुंचे। स्वयंवर की शक्ति कि महाशिव के धनुष को जो तोड़ पाएगा वही सीता से विवाह रच जाएगा। अलग अलग राज्यों से कई पुरंदर राजा इस अनूठे स्वयंवर में हिस्सा लेने पहुंचे, परंतु सभी विफल रहे। दासी मंत्रा ने बिछाया जाल और दशरथ बन गए कैकेयी के शिकार। वचनों की याद दिलाकर दशरथ को धर्म संकट में डाला। सदियों से चली राम माता सीता व लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए। गंगा नदी के तट तक अयोध्या वासी उन्हें भारी मन से छोड़ने गए। गंगा नदी को पार कराने के लिए केवट की मदद ली गई।
हो मेरी छोटी सी है नाव मोहे डर लगे राम मोहे डर लगे राम कैसे बिठाऊं छोटी सी है नाव तेरे जादू पर पाऊं। राम ने पंचवटी में अपनी कुटिया बनाई और एक साधारण जीवन बिताने लगे। एक दिन अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने एक चाल चली और ताड़का के पुत्र मारीच से मदद मांगी। पंचकुटी के निकट पहुंचकर मारीच ने मायावी हिरण का रूप धारण किया। सीता ने उस रेख को पकड़कर लाने का हठ किया। राम मृग के पीछे भागे। जैसे ही उन्होंने तीर चलाया, मायावी मारीच ने सीते सीते राम जैसी आवाज सुनकर लक्ष्मण सीता के आग्रह पर राम को ढूंढने गए, पर सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा खींच गए। और यहाँ रावण ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और भिक्षा मांगने लगे। भिक्षा दे भिक्षा दे भिक्षा दे सीता ने ब्राह्मण पकड़कर उनका हाथ रखा और लक्ष्मण रेखा पार कर उन्हें भिक्षा दे दी। जब उससे विनाश के काल का प्रारंभ हुआ। राम को भूलो ये देखो राम आया है पहली सारी सृष्टि पर जिसकी छाया है राम राम नाम तुम क्यों लेते हो राम राम का रक्त तुमने है लगाया सीता तुमने राम में है ऐसा क्या गुण पाया रावण छोटा हरण में कामयाब हो गया और सीता को लेकर उड़ चला और रास्ते में मिले जटायु के पंख काट दिए। दूसरी ओर राम व लक्ष्मण सीता माँ की खोज में व्याकुल बेचैन वन वन भटकने लगे। सीता की खोज करते हुए राम सुग्रीव से मिले। सुग्रीव ने भगवान राम को हनुमान, जामवंत व वानर सेना से मिलवाया और यहीं से लंका गमन की शुरुआत हुई। राम युद्ध में नहीं शांति में विश्वास रखते थे, इसलिए हनुमान को सीता की खोज के लिए लंका भेजा गया। हनुमान ने लंका में खूब ऊधम मचाया। सीता माता को खोजते खोजते अशोक वाटिका पहुंचे।
बजाने आवाओ रघुराई। विभीषण ने रावण को समझाने के प्रयास किए, परंतु विफल हुए। रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा दी और सारी लंका नदी जल गई। विफल लौट आने के बाद सीता माता को वानर सेना का निर्णय लिया गया। सुग्रीव की वानर सेना की मदद से समुद्र के ऊपर राम सेतु बनाया गया और इस प्रकार वानर सेना लंका तक पहुंचने में सफल रही। अंत में पाया ही परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। बिना राम के जिस सागर को लांघ सके नहीं राम, कूद पड़े हनुमान उसी को, मिलकर राम का नाम, राम का नाम। घोर पर युद्ध हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे साथ श्री रघु रात्रि आए अपनी नगर, करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता बिन बात की चिंता किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की रहे हर श्वास रहे हर श्वास पर भगवान के प्रिय नाम की चिंता रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता विभीषण को अभय कर दे दिया लंकेश पल भर में विभीषण को अभय कर दे दिया लंकेश पल भर में विभीषण को अभय कर दे दिया लंकेश पल भर में विभीषण को अभय कर दे दिया लंकेश पल भर में उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की
सत्य की जीत होगी। लोग करे विचार कि सत्य ही हमारा धर्म है और धर्म ही हमारा सत्य है। हमें हमारे अंदर के रावण को जलाना है। थैंक यू।